Hello students, so we are on linear equation in two variable class 9 mathematics NCERT book. So in our last video we learned how to plot a graph of equation with the two variables, linear equation with two variables. Now we will learn how to plot a graph of line parallel to x-axis and y-axis. What does that mean? ये हम समझेंगे. सबसे पहले let's show the following points on number line. चलो, we just simply locate all those coordinate points on the x-axis and y-axis or the number lines. Okay, so now look at the first one. In first case I have taken some numbers, some points. All those points, what is common on it? Common with all those things, all those numbers, the common point is all the x coordinate has some values, whereas all the y coordinates have 0 as its value. Okay, y coordinate में 0 है सबका, x coordinate में कुछ values दिए गए हैं. And my second number is all the points have x coordinate 0 and y coordinate some values are there in y coordinate. Okay, so in first case x coordinate में value है, in second case y coordinate में value है. So first case में जितने भी points हैं उन्हें हम graph paper में locate करते हैं. So if we locate those points in graph paper, so how it is going to work, let's see. So this is I have drawn an x axis and y axis. Okay, this is y dash and this is x-axis. Okay, this is origin. So we will locate which points. So this is 2 0 minus 4 0. So now, oh I forgot ये वाला point -4 ले लेते हैं. Okay, so now look. So first we have to locate those points 2 0 minus 4 0 3 0 minus 1 0. So 2 0, since all those have x coordinate and y coordinate 0, that means all those points will lie on the x axis itself. So first is 2 0, so this is my point. Second is minus 4 0, so here is the point. Third one is 3 0 and fourth one is minus 1 0. So all those points I have located now lie on the x axis itself. Okay, क्योंकि इसका all those points have x coordinate has some value whereas y coordinate is 0. Okay, now इसी तरह x axis में जितने भी नंबर हैं उनका x coordinate कुछ value देता है, y coordinate 0 होता है. So इस हिसाब से x axis का जो इक्वेशन है हम क्या बोल सकते हैं? For all those points lie on the x-axis, for them y coordinate is equal to 0. So this is the equation for x-axis. Okay, ये x axis का इक्वेशन है, याद रखना इसे. x axis में y कोऑर्डिनेट सबका 0 होता है, इसीलिए इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0. उसी तरह लेट्स कम टू दिस. सेकेंड नंबर में मेरा जो भी पॉइंट्स हैं वो उनका y कोऑर्डिनेट कुछ वैल्यू देता है और x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है. तो फर्स्ट इज 0 5 0 2 0 3 0 1. सो दिस इज 0 5 यहाँ पे. नेक्स्ट 0 2 0 3 0 2 पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस में रहेगा, और 0 3 ये एंड 0 1 ये. उसी तरह नेगेटिव में भी अगर आप ले सकते हो. तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आप लोकेट करोगे उसका क्या होगा? फॉर y एक्सिस सारा का सारा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसीलिए y एक्सिस का जो इक्वेशन है वो होगा x इज इक्वल टू y axis. Okay, this is very basic things. So हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ से? So x axis का इक्वेशन है y is equal to 0 and y axis का इक्वेशन है x is equal to 0. Okay,
So whatever you conclude, we just write it. So what do you conclude from the graph? From the graph you conclude equation of x-axis is y is equal to 0 क्योंकि all the y coordinates are 0 in the x-axis, and equation of y-axis is x is equal to 0 because all the x coordinates for y-axis are 0. Okay, now we will plot a graph for a equation given. Let's plot a graph for x is equal to 2. ये वाला इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ करना है. सो नाउ you will say that this equation is not a equation in two variable, but we know how to convert it into equation into two variable. So simply convert this value as equation into two variable. Okay, so this is x minus 2 is equal to 0. Now here the coordinates, here the coefficient of x is 1. Now plus the coefficient of y will be, क्योंकि y यहाँ पे नहीं है तो 0 and minus 2 is equal to 0. So this is what the equation is now. Okay, now look at the equation carefully. If क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी y का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, दैट मीन्स आप y में कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. ओके, सो इफ़ यू पुट सपोज यहाँ पे x वैल्यू, यहाँ पे y वैल्यू, सो y में जो भी आप पुट करोगे, यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, चलो y एंड x कर लेते हैं, ठीक है. सो y में आप जो भी पुट करोगे 1 पुट करो, ये वैल्यू 0 हो गया, और आपके पास बच जाएगा क्या, 1 x minus 2 is equal to 0. दैट इम्प्लाइज x is equal to 2. अगेन y में 2 पुट करो, y में 2 पुट करोगे तो फिर अगेन ये वैल्यू 0 हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा ये वाला, x 1 से x minus 2 is equal to 0. दैट इम्प्लाइज x is equal to 2. So again put 3, put 4, whatever value you will put at y, ultimately we are going to get the answer x is equal to 2. ओके, सो जो भी y का वैल्यू आप जो भी मर्जी पुट करो, x का वैल्यू क्या निकलने वाला है, 2 ही निकलने वाला है. सो पुट -1, यहाँ पे 2 निकलेगा क्योंकि ये टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है. दैट मीन्स हियर फॉर यू कितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और उनमें एक चीज़ कॉमन है कि उसका x कोऑर्डिनेट सबके लिए 2 ही है. सो उसी तरह अगर इसे हम ग्राफ में भी प्लॉट करेंगे तो क्या निकलता है. सो हम याद रखो, हम पहले इक्वेशन कौन सा लिया है, x इज इक्वल टू 2 के लिए लिया है, जहाँ पे x के लिए एक डेफिनेट वैल्यू दिया गया है. उस इक्वेशन को हम लेते हैं जहाँ पे y का कुछ दिया नहीं गया है, और उसे हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू लेंगे. सो यहाँ पे मैंने उल्टा किया हुआ है, याद रखना. सो पहले x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ऊपर का है. सो x द पॉइंट्स आर 2 1 xy, again 2 2 xy, 2 3 and 2 4, 2 -1, whatever. सबका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट वैरी करता है. y में आप कुछ भी लो, x कोऑर्डिनेट आपका 2 ही आएगा. सो अगर इसे आप ग्राफ में प्लॉट करते हो तो y हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट, लुक, क्योंकि आपको x का कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया गया है. लेट मी राइट द numbers first. So look, now I have written the numbers here. So अभी क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स को लोकेट करना है. So look, 2 1, x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 1, x एक्सिस का वैल्यू 2, y एक्सिस में 1. Which point is this? ये वाला पॉइंट. अगेन 2 2, x में 2, y में 2. This point 2 3, again x2 y3. This point 2 4, यहाँ पे चला जाता है ये पॉइंट, इसे 4 दे दो. 2 -1, यहाँ पे x का 2, y का -1. आई होप यू नो हाउ टू लोकेट x का 2, y का 1, x का 2, y का 2, x का 3, y का 3. उसी तरह x का 2, y का -1. Look, now what are you looking? Notice one thing.
all those line are laying on a straight line. ओके, ये सारा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा और जो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से। सो अगर मैं इसे इन पॉइंट्स को अगर मैं जॉइन करूँगी, सो यू आर गेटिंग अ लाइन दैट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो जिस तरह से x इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, उसी तरह x को कोई भी डेफिनेट इस इक्वेशन का, ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू 2। सो ऑल दोज पॉइंट्स लाइंग ऑन x इज इक्वल टू 2 लाइन, उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा पर x कोऑर्डिनेट को एक डेफिनाइट वैल्यू मिलेगा और वो डेफिनाइट वैल्यू क्या है, 2। समझ में आया? So that means x is equal to 2 is a line parallel to y axis. Now similarly, if you will given an equation y minus y plus 3 is equal to 0. So इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका y को क्या डेफिनेट वैल्यू मिलेगा, y is equal to -3 मिलेगा। उस हिसाब से जैसे हम ये वाला किया, यहाँ पे क्योंकि x नहीं है तो अगर हम इस तरह से इसे x में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस y के पास ओनली y है तो 1 प्लस कोई नहीं, ये इस साइड आ जाएगा, इसे यहाँ पर रहने दो, इज इक्वल टू -3। सो वॉट एवर वैल्यू पुट ऑन x का जो भी वैल्यू तुम पुट करोगे y को हमेशा -3 ही मिलेगा क्योंकि ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। सो जो बॉक्स आपको मिलेगा, ये सब जो मैं अभी ग्राफ पेपर में लिख रही हूँ, जस्ट पुट इट ऑन योर कॉपी। ओके, सो एक्स का आप जो भी वैल्यू पुट करोगे y को -3 मिलेगा, 2 -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, वॉट एवर वैल्यू यू पुट ऑन x, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट y as -3। सो अगर तुम -3 को y एक्सिस में दिखाना चाहते हो, सॉरी ग्राफ में दिखाना चाहते हो, जिस तरह से ये y इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू 2 था तो ये y एक्सिस से पैरेलल हुआ, ये y इज इक्वल टू -3 है तो उस हिसाब से कौन से एक्सिस में पैरेलल होगा, कौन x एक्सिस के ऊपर पैरेलल होगा, क्योंकि -3 y एक्सिस में कहाँ पे होता है, 0। लेट मी डू दिस। मान लो अगर हम इसी ग्राफ में उसे दिखाएंगे तो मेरे पॉइंट्स क्या है, 1 -3, 2 -3, -3 ओके, 1 -3, 1 x का 1 वैल्यू, y का -3 ओके, x का 2 वैल्यू, y का -3, x का 3 वैल्यू, y का -3, x का -3 वैल्यू, y का -3। सो वॉट एवर all those points are getting, this is a line। अगर इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगा जो किस एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, x एक्सिस के साथ। सो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3 और दैट इम्प्लाइज y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन ये है जहाँ पे y को एक डेफिनेट वैल्यू मिल रहा है और क्योंकि y को डेफिनेट वैल्यू मिल रहा है तो वो x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। आई होप आप लोगों का भी समझ में आ गया हो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ पेपर बाय योर ओन so that you can understand it in a better way. Thank you.